Hello students, welcome you all. Students, today we are starting with our new chapter, that is chapter number 13, magnetic effects of electric current. Okay students, so let's start with this chapter. Students, our first topic is Ørsted's experiment. Yes, scientist Hans Christian Ørsted, he is one of the leading scientists of 19th century. He played a crucial role in understanding electromagnetism. In 1820, he accidentally discovered that a compass needle got deflected when an electric current passed through a metallic wire placed nearby. Students, you can see in the pic on the screen that there is an electric circuit, okay, and a magnetic compass has been placed near this circuit. Okay, what did Ørsted see? Ørsted saw that when electric current was passed through these wires, there was a deflection seen in the magnetic compass. Magnetic compass कब deflection दिखाता है? When there is some magnetic field, तो ही उसका जो pointer है, needle है, वो deflection show करता है. Through this observation, Ørsted showed that electricity and magnetism were related phenomena. His research later created technologies such as radio, television and fiber optics. The unit of magnetic field is named the Ørsted in his honor. Okay, so you can see that when the circuit is open, an open circuit with the compass placed near it. Okay, when the circuit is open means current is not flowing, it is in off position. So current is not flowing through the circuit, so there is no deflection in the मैग्नेटिक कंपास. बट जैसे ही इसमें से करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, जब सर्किट क्लोज्ड हो जाएगा, आप स्विच को ऑफ ऑन कर दोगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, करंट पास करेगा एंड देयर इज अ डिफ्लेक्शन सीन इन द मैग्नेटिक कंपास. सो दिस एक्सपेरिमेंट वाज conducted by Hans Christian Ørsted. Okay students, so after discussing regarding Ørsted's experiment, let us go for the topic that is magnetic field and magnetic field lines. Okay, what do you mean by a magnetic field? The region around a magnet where the force of attraction or repulsion can be detected is called magnetic field. Suppose you have a bar magnet. We all know students that a bar magnet possesses two poles, north pole and south pole. Okay, bar magnet के आसपास का जितना भी रीजन जहाँ पे मैग्नेट अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा सकता है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड. ओके, उस मैग्नेट के थोड़े से पास में अगर आप आयरन नेल लेके आओगे तो इट कैन अट्रैक्ट द आयरन नेल, बट इफ आयरन नेल इज केप्ट फार ऑफ, दूर रख देंगे तो इट कैनॉट अट्रैक्ट दैट आयरन नेल. सो द एरिया, जितनी एरिया में, जितने रीजन में मैग्नेट अपना फोर्स लगा सकता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. सो वंस अगेन इट्स डेफिनेशन, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट where the force of attraction or repulsion can be detected is called magnetic field. Magnetic field around a magnet can be detected by using a magnetic compass. Okay, आपको अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चेक करना हो तो आप मैग्नेटिक कंपास को आसपास रोटेट करो तो यू कैन सी कि भाई किस किस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ये अगर आपको डिस्कस करना हो तो वेरी इंपॉर्टेंट हम एक काम कर सकते हैं कि देर इज एन एक्टिविटी 13.2 इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. ओके, व्हाट आर दे आस्किंग? फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड. ओके, एक ड्राइंग बोर्ड के ऊपर एक वाइट पेपर रखो, प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट, स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट. अ सॉल्ट स्प्रिंकलर में बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस. व्हाट वी आर डूइंग, एक बार मैग्नेट रखा एक पेपर के ऊपर और ऊपर से हम लोगों ने क्या किया, आयरन फिलिंग्स, आयरन का पाउडर एकदम चूरा चूरा, उसको हमने बार मैग्नेट के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया. ओके, जब हम स्प्रिंकल करेंगे तो एकदम ऑडली पूरा हर जगह पे स्प्रिंकल हो जाएगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, टैप द बोर्ड जेंटली. आप जिस कार्डबोर्ड के ऊपर आपने पूरा रखा है उस कार्डबोर्ड को थोड़ा सा क्या करो, जेंटली टैप करो, थोड़ा सा हाथ से इसको मारो. ओके, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, you will observe that the iron fillings arrange themselves in a pattern as shown in this first figure. आप देख सकते हो कि भाई आयरन फिलिंग्स जो है ना ऐसे सर्कुलर पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर देंगे.
अंडरस्टूड, आयरन का पाउडर पूरे ऐसे लाइन्स के फॉर्म में आ जाएगा. ओके, वाई डू द आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच अ पैटर्न? ओके, तो लेट अस सी. द मैग्नेट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट, देयरफॉर द आयरन फिलिंग्स एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. मैग्नेट जो है अपने रीजन में जितने भी होते हैं चीज़ें उन पे एक फोर्स लगाता है. ओके, तो इन आयरन फिलिंग्स में भी फोर्स आता है. द फोर्स एक्सर्टेड मेक्स आयरन फिलिंग्स टू अरेंज इन अ पैटर्न. ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है आयरन फिलिंग्स के ऊपर, इट मेक्स देम टू अरेंज देमसेल्व्स इन अ पैटर्न. और ये पैटर्न कैसा है? ऐसे सर्कुलर पैटर्न में. द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड. द लाइन्स along which the iron fillings align themselves, ये जो लाइन है ना, जिस लाइन के तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स जो है, मैग्नेटिक आयरन फीलिंग्स अपने आप को अरेंज कर रहे हैं, उन लाइन्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. ओके, सेकेंड फिगर में आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. ओके, तो लेट अस नाउ डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करते हैं. यहाँ पे खाली 3 ही दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, बट आई विल डिस्कस सम मोर कैरेक्टरिस्टिक्स. Okay, the first characteristic is that the magnetic field is a vector quantity. Magnetic field is what? It is a vector quantity. It has both direction and magnitude. Okay, magnetic field line का direction भी होता है और magnitude भी होता है. Okay, second, the direction of the magnetic field is taken to be the direction to which a north pole of the compass needle moves around it, moves inside it. देखो क्या करने का, आपको किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करना हो तो वहाँ पर क्या करो, मैग्नेटिक कंपास रख दो. ओके, मैग्नेटिक कंपास का जो पॉइंटर है, जो निडल है, वो जिस तरफ नॉर्थ पोल की तरफ जो साइड करेगा वो उसका क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा. जिस तरफ वो घूमेगा उस तरफ का नॉर्थ पोल होगा. ओके, कंपास जिस तरफ, निडल जिस तरफ घूमेगा वो नॉर्थ पोल होगा. Therefore, it is taken by convention that the field lines emerge from north pole and merge at the south pole. So you can see the first point on the screen. The magnetic field lines emerge at the north pole and merge at the south pole. Second figure में देखो, magnetic field lines कहाँ से निकल रही है? north pole से निकल रही है और कहाँ पे अंदर जा रही है? south pole में. Okay, the magnetic field lines are closer at the poles. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी पोलर रीजन्स में ज़्यादा है और बीच वाले रीजन में क्या दूर दूर है. आप देख सकते हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रहे हैं. दे आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर, बट जैसे जैसे बीच में आते हैं तो वो एक दूसरे से थोड़ा दूर चले जाते हैं. ओके, तो इनसाइड द मैग्नेट व्हाट हैपेंस? outside we can see it is going from north pole to south pole, and inside the magnet the direction of magnetic field lines is from south pole to north pole. The magnetic field lines are closed curves. ये closed curves है, नॉर्थ पोल से निकलते हैं और अंदर जाते हैं साउथ पोल से, और अंदर साउथ से नॉर्थ पोल तक जाते हैं. ओके, the relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines. The field is stronger, that is the force acting on the pole of another magnet placed is greater when the fields are crowded. मतलब larger the magnetic field lines, higher will be the strength of the magnetic field. जितने ज़्यादा magnetic field lines होंगे उतने ज़्यादा strength होगा. तो आप सेकेंड फिगर में देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ज़्यादा है. सो द मैग्नेटिक फील्ड इज stronger at its poles, north pole and south pole, compared to the middle region of the bar magnet. Okay, now the last point is very very important. The magnetic field lines do not intersect each other. आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिख रहे हैं आपको सेकंड फिगर में, नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं और साउथ पोल में जा रहे हैं. कहीं पे भी दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं. तो वाई दे डू नॉट इंटरसेक्ट? वाई? नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर. No two field lines are intersecting each other. Why? Because if they intersect at any point, अगर कोई भी दो फील्ड लाइन इनमें से दो जो भी सर्कुलर लाइन से कोई भी दो फील्ड लाइन्स अगर इंटरसेक्ट करते हैं, then it would mean that at the point of intersection, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, the compass needle would point towards two directions which is not possible. Okay, जिस पॉइंट पे वो दोनों फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे फील्ड लाइन के दो डायरेक्शन मिलेंगे. एक फील्ड लाइन के क्या मिलेंगे? दो डायरेक्शन, विच इज़ नॉट पॉसिबल. ओके,
अगर आप किसी भी फील्ड लाइन का डायरेक्शन जांचना चाहते हो तो किसी भी पॉइंट पे आप वहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखते हो तो वो एक ही डायरेक्शन दिखाता है, लेकिन अगर दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन मिलेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. स्टूडेंट्स, ये गिव रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ द सेकेंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 225. पेज नंबर 225 पे ये लिखा है. आई एम रीडिंग वंस अगेन. No two field lines are found to cross each other. If they did, it would mean that at the point of intersection, the compass needle would point towards two directions, which is not possible. Intersection point पे दो दो directions आ जाएंगे, which is not possible. So the magnetic field lines do not intersect each other. Okay, students. Now our second topic is magnetic field due to a current carrying conductor. ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर. तो आप इसके लिए एक एक्टिविटी है. कैन यू सी दिस एक्टिविटी कि वी हैव अ कार्डबोर्ड. ओके, उस कार्डबोर्ड के सेंटर में से हमने एक है ना वायर को पास किया. कैन यू सी द वायर इज पासिंग फ्रॉम द कार्डबोर्ड. ओके, और उस कार्डबोर्ड के ऊपर हमने क्या रखा है, आयरन फिलिंग्स रखें, आयरन का पाउडर. ओके, नाउ कनेक्ट दिस कंडक्टिंग वायर. जो स्ट्रेट वायर हमने रखा है ना, उस वायर को बैटरी से कनेक्ट करके इसमें से करंट पास करेंगे. क्या करेंगे, करंट पास करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन व्हाट वी डिड इन दिस एक्टिविटी, वी हैव टेकन अ ड्राइंग बोर्ड और अ कार्डबोर्ड एंड वी हैव पास्ड अ वायर थ्रू दैट सेंटर ऑफ दैट पेपर. ओके, एंड वी हैव एडेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन द पेपर. ओके, नाउ एज सुन एज वी पास द करंट थ्रू द वायर, जैसे ही हम वायर के आसपास करंट पास करेंगे उसके बाद क्या करना है, जस्ट जेंटली टैप द कार्डबोर्ड. उस कार्डबोर्ड को टैप करो तो यू विल सी दैट द आयरन फिलिंग्स विल अरेंज देमसेल्व्स इन द सर्कुलर पैटर्न्स. आप देख सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिनका सेंटर सेम है और रेडियस अलग अलग है. स्मॉल सर्कल देन बिगर. ये जो सर्कल्स दिखा रहे हैं उस पर अपने आयरन फिलिंग्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं. अंडरस्टूड. तो व्हाट डज दिस शोज? दिस शोज दैट व्हेन अ current carrying conductor is there, then magnetic field is produced due to it. Okay, whenever current is passing through a conductor, it produces magnetic field. Are you getting? Are you getting? Once again students, ये एक्टिविटी में क्या किया, जैसे ही हमने करंट पास किया और उसके बाद कार्डबोर्ड को टैप किया तो आयरन फिलिंग्स अपने आप को अरेंज कर दिया सर्कुलर वे में. इसका मतलब वहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, मतलब एक कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. Now if we want to find the direction of this magnetic field, we have to go for a rule. अगर आपको इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना हो तो आपको एक रूल समझना पड़ेगा. उस रूल को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. तो लेट अस सी दैट रूल. ओके स्टूडेंट्स, सी हियर राइट हैंड थंब रूल. तो राइट हैंड थंब रूल में क्या होगा, आपको अपने राइट हैंड को पकड़ने का. देखो फर्स्ट फिगर में. ओके, राइट हैंड में एक कंडक्टर आपने पकड़ा हुआ है ना. कोई भी लकड़ी को आप ले लो, ठीक है ना, उसको कंडक्टर मान के. ओके, तो इट स्टेट्स दैट इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड. हमने एक कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़ा है, सच दैट द थंब, ये जो आपका अंगूठा है ना, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. अगर आपका अंगूठे का जो डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन है. आपको दिख रहा है फर्स्ट फिगर में कि एक हैंड है, आप फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं, और बीच में वायर है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर है. तो करंट का डायरेक्शन क्या है, जो थंब का डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन है. तो आप देख सकते हैं रिमेनिंग जो 4 फिंगर्स है, अदर फिंगर्स, वो कैसे है, वो सर्कुलर वे में कंडक्टर को पकड़े हुए हैं. तो जो 4 फिंगर्स का जो डायरेक्शन है ना सर्कुलर वे में, वो किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो वंस अगेन, इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड, इसमें राइट हैंड ही होगा, such that the thumb points in the direction of the current. Thumb is pointing the direction of the current. Then the fingers wrapped around the conductor, जो fingers है जो कंडक्टर के आजू बाजू है, shows the direction of the magnetic field. The fingers wrapped around the conductor shows the direction of the magnetic field. अगर थंब का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन है तो बाकी फिंगर्स का जो डायरेक्शन है ना सर्कुलर वे में, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. सो फॉर व्हाट इज द राइट हैंड थंब रूल यूज्ड? Right hand thumb rule is used to find the direction of the magnetic field produced by a current carrying conductor. एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आपको जानना है तो आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करने का. ओके स्टूडेंट्स, तो यू हैव टू गो फॉर द स्टेटमेंट ऑफ दिस रूल. ओके, so students, by this we end our today's session. Today we discussed the starting of this chapter
by Ørsted's experiment. Then we discussed what do you mean by magnetic field and magnetic field lines. We saw the characteristics of magnetic field lines, which are very, very important. Then we saw that how magnetic field is produced by a current carrying conductor, and to find the direction of that magnetic field we have seen right hand thumb rule. Okay students, read the NCERT textbook and also go through the reference books if you have. Okay, till then, thank you students.